Hello everyone, in this question, in Young's double slit experiment, the interference pattern is found to have as intensity ratio between the bright and dark fringes as 9. This implies that in this question it is given that the value of that is the intensity ratio of I bright by I dark, and this bright is called for maximum, so this is I maximum divided by I minimum, and this is equals to 9, that is we write here that is 9 by 1, so this is the ratio. And we know that the I maximum by I minimum is given by the formula, that is this is equals to amplitude. So this can be A1 plus A2 is the amplitude of the bright and dark, so this can be written as this is A1 plus A2 and this A1 minus A2, and this is whole square of amplitude is equals to that is ratio of intensity, and so this is equals to 9 by 1. So we can write the value that is A1 by A2 divided by A1 minus A2, and this is for maximum and this is for minimum, so this is equals to 3 by 1. By using the componendo and dividendo, we can write this value is equals to that is A1 plus A2, and this is plus A1 minus A2 whole divided by written as this is equals to A1 plus A2, and this is minus A1 minus A2 is equals to 3 plus 1 and divided by 3 minus 1. There imply this can be written as that is this will be cancel out A2 and A2, and there this A1 and A1 will be cancel out, so it becomes that is twice of A1 divided by twice of A2 is equals to 3 plus 1, this is 4, and this is 3 minus 1, this is 2. So this 2 will be cancel out and it becomes that is 2 by 1. So A1 by A2 is equals to 2 by 1. Now we have to find that the intensity, and we know that the formula of intensity, that is intensity I is directly proportional to amplitude a square of amplitude. So we write that is I1 by I2, and I1 by I2 is equals to written as this is A1 by A2 whole square. So and A1 by A2 is equals to that is the value is here that is 2 by 1. So A1 by A2 is equals to 2 by 1. So we put the value here, that is this is equals to 2 by 1 whole square, and it becomes that is I1 by I2 is equals to 4 divided by 1. So the ratio of intensity, that is I1 by I2 is equals to 4:1. Now we match this option. The intensity of individual sources, that is 4 and 1 units. So option second is the right answer. I hope you understood. Thank you. Hello, we are given with a question, and the question says slit of width D is placed in front of a lens of focal length 0.5 meter and is illuminated normally with light of wavelength 5.89 into 10 to the power minus 7 meter. The fast diffraction minima on either side of the central diffraction maxima are separated by this much distance. The width D of the slit is what? Since we are given this, right? So we have a form, we are given with a slit of size D, right? And we have placed a lens here, and here it is a screen, right? So the distance between two first diffraction minima on either side, right, is, let's say the formula for that is 2 lambda d by small d, right? So what we can say is that from here 2 lambda d by small d, so capital D, what is capital D? The distance between the pattern where we are obtaining, that is the screen, and the slit, that is capital D, and lambda is the wavelength used. So that is equal to 2 into 10 to the power minus 3 meters, correct? So what we can write is 2 into wavelength is 5.89 into 10 to the power minus 7, right?
into D. What would be the D? D would be equal to 0.5. Why? Because it is just placed, actually it is just placed here, right? So it will, like the rays are coming that are parallel, right? So it will be formed at the focus of this, right? So if this is the focus, then D would be equal to 0.5 meters by small d. We do not know that. We have to calculate that 2 into 10 to the power minus 3. Correct. So from here what we can say is that D would be equal to, this 2 and this 2 gets cancelled, right? So 10 to the power minus 3 into 10 to the power 7 by 5.8, not actually this, this is 1 by D. D is equal to 5.89 into 0.5 into 10 to the power minus 7 plus 3. So that would be 10 to the power minus 4. So from here D turns out to be equal to, approximately equal to 2.945 into 10 to the power minus 4 meters. So this is the value of the slit size, right? So the value is 2.945 into 10 to the power minus 4 meters. Thank you. The question is, in Young's double slit experiment, two slits act as current sources of equal amplitude A and a wavelength lambda. In another experiment, with the setup of two slits are sources of equal amplitude A and wavelength lambda, but are incoherent. The ratio of intensities of light at the midpoint of the screen in the first case to that in the second case is. So યંગના ડબલ સ્લિટના પ્રયોગની અંદર બે સોર્સ લેવાના છે જે કરંટ છે, કરંટ એટલે કે સુસંબદ્ધ ઉદ્ગમો છે, તેમના એમ્પ્લિટ્યુડ એ છે અને લેમ્બડા એમની તરંગ લંબાઈ છે. બીજાની અંદર અસુસંબદ્ધ ઉદ્ગમ લેવાના છે, બરાબર. તો એની અંદર બી એમ્પ્લિટ્યુડ એ અને લેમ્બડા છે. તો બંને તરંગો જ્યારે સંપાત થાય ત્યારે તેમની ઇન્ટેન્સિટી નો શું શોધવાનો છે, ગુણોત્તર છે શોધવાનો છે. તો શું થશે એમની ઇન્ટેન્સિટીનો ગુણોત્તર? તો ઇન્ટેન્સિટીનું ઇક્વેશન આપણને ખબર છે, જ્યારે કરંટ હોય ઇન કેસ કરંટ જ્યારે સુસંબદ્ધ ઉદ્ગમ હોય ત્યારે કેવું થાય છે, તીવ્રતા મહત્તમ થાય છે. તો તીવ્રતા મહત્તમ કેટલી થશે? તો કંપ વિસ્તારના વર્ગના સમપ્રમાણમાં, એટલે a સ્ક્વેર પ્લસ e સ્ક્વેર, તો 4a સ્ક્વેર એ એમની તીવ્રતા થશે. હવે જે સોર્સિસ જો અસુસંબદ્ધ ઉદ્ગમ હોય, બરાબર ને, ઇન કેસ સેકન્ડ કેસ આપણે લઈએ, sources are incoherent. તો ત્યારે શું થશે તેની ચર્ચા કરીએ. તો જ્યારે સુસંબદ્ધ ઉદ્ગમ નથી, અસુસંબદ્ધ ઉદ્ગમ હોય ત્યારે આપણને સરેરાશ તીવ્રતા મળશે I1 પ્લસ I2. તો સરેરાશ તીવ્રતા a સ્ક્વેર પ્લસ a સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2a સ્ક્વેર થઈ જશે, બરાબર. તો બંનેનો ગુણોત્તર કેટલો થશે? પહેલામાં સુસંબદ્ધ માટે I મેક્સિમમ, અસુસંબદ્ધ માટે I મિનિમમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? 4a સ્ક્વેર બાય 2a સ્ક્વેર. તો 4a સ્ક્વેર બાય 2a સ્ક્વેર એટલે 2:1 થઈ જશે. તો આપણો જે આન્સર છે, આન્સર 1 એ રાઈટ આન્સર થશે, બીજા બધા ખોટા થશે. ઓકે, તો answer 1 is our right answer. Hello, we are given with a question, and the question says, in a Young's double slit experiment performed with a source of white light, only black and white fringes are observed. In Young's double, first of all, I'll draw the setup diagram. Let's say these are two slits separated by a distance d, right? And the area
or the size or the width of this slit, let that be W, right? So width be W, and we have a screen here, right? That is at distance capital D from the slits, and this is the central line passing through this, right? So here we would get the central maxima, and on both the sides, on either side of central maxima, we would get the fringes, right? When we use white light, we are using white light. So what does that mean is, since W is almost comparable to lambda, that is the wavelength used. Lambda is what? Wavelength of light, right? So when we use that wavelength of light, right, so W is almost comparable to lambda. So what happens is there is a diffraction of light. When we use a monochromatic light, that does not affect much, but when we are using a white light, that is a spectrum, that is a broad spectrum of light, right? So diffraction occurs, and due to diffraction there is a splitting, not diffraction, actually dispersion. I used it. Dispersion occurs, right? So when dispersion occurs, what is dispersion? Dispersion is the splitting of light into its constituent colors. So what happens is, when white light falls on this width, right, so it gets splitted up, we get white light at the center maxima, but we get different colored fringes, not black and white. We get colored fringes on either sides. So this statement is false. Thank you. In this problem, we have given that the two slits in Young's double slit experiment are illuminated by two different sodium lamps emitting light of same wavelength. No interference pattern will be observed on the screen. Okay, so as we have given that there are two slits. Okay, so consider this is slit 1 and this is slit 2. So this is slit 1 S1 and this is represented as S2. Okay, and there is a screen over here, so consider this is a screen. Okay, and we have given that the two slits are illuminated by two different sodium lamps. Okay, so if this is one lamp having different power and this is another lamp having different power. Okay, so this is considered as source 1, this is considered as source 1, and this is considered as source 2. Okay, so as sources are different, since sources are different different at the two slits, different at the two slits, we can say that their frequencies will be different, okay, different, and they do not have constant phase difference, and they do not have constant phase difference. Okay, constant phase difference. So as we know that the basic property for the interference is the waves must be coherent waves. So we know that for interference of the two waves, at a point, the waves must be coherent. Coherent means the wave means frequency same and constant phase difference.
constant phase difference. Okay, so as we can see that this is the requirement, this is the requirement of interference. Okay, that is same frequency and constant phase difference, and we have given that at two different slits there are two different sources, so their frequencies are not same, they are different, and they do not have the constant phase difference. That means they are not coherent waves, they are not the coherent waves. Okay, not coherent waves, so we can say that they will not produce interference. Okay, so they will not produce interference. This is the basic fundamental of this question. Okay, so we have given that no interference pattern will be observed on the screen, that is correct. Okay, so we can say that this is the right statement. Thank you. ये क्वेश्चन में हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का बात कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम लोग दो लाइट्स लेके परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट हम लोग 500 नैनोमीटर वेवलेंथ होने वाला लाइट से, और सेकेंड हम लोग 700 नैनोमीटर होने वाला लाइट से। ओके, अभी हम लोग को क्या पूछ रहे हैं कि मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेदर मैक्सिमास कोइंसाइड अगेन। ओके, हम लोग को पता है ये जो सेंट्रल मैक्सिमम जो है वहाँ पे उन लोग का तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमा कोइंसाइड करेगा, लेकिन हम लोग को पूछ रहे उसके बाद मिनिमम डिस्टेंस कितना है जहाँ पे उन लोगों का मैक्सिमास कोइंसाइड करेगा। हम लोग को बोला है कि कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी इज इक्वल टू 10⁻³ लेने के लिए। Okay, we know that the distance from the central maxima to the nth bright fringe yn is equal to n into lambda into capital D divided by small d. ओके, तो फर्स्ट के केस में हम लोग अगर देख रहे हैं तो वाई एन इज इक्वल टू वाई एन वन इज इक्वल टू 500 नैनोमीटर के केस का बात कर रहे हैं हम लोग, एन वन इंटू लामडा वन इंटू कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी, वाई एन टू इज इक्वल टू एन टू इंटू लामडा टू इंटू कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी। हम लोग को बोल रहे हैं कि ये दोनों कोइंसाइड करेगा एक जगह पे, देयरफॉर वाई एन वन इज इक्वल टू वाई एन टू हो जाएगा। इट इज इक्वल टू एन वन लामडा वन इज इक्वल टू एन टू लामडा टू है, मतलब n1 lambda 1 is equal to n2 lambda 2. We can write n1 divided by n2 is equal to lambda 1, sorry, n1 divided by n2 is equal to lambda 2 divided by lambda 1. It is equal to lambda 2 कितना है, lambda 2 700 है, therefore 7 divided by 5. ओके, n1 डिवाइड बाई n2 इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 5। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि जब लामडा वन यूज़ करके जब हम लोग परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ लामडा वन यूज़ करके जब हम लोग परफॉर्म करते हैं, तब जो सेवेंथ मैक्सिमा है, सेवेंथ मैक्सिमा विल कोइंसाइड विथ दी लामडा टू परफॉर्म करके जब हम लोग कर सकते हैं उसका फिफ्थ मैक्सिमा से कोइंसाइड करेगा। सिमिलरली 14th मैक्सिमा ऑफ लामडा वन एंड 10th maxima of lambda 2 will coincide. Okay, 14th maxima of lambda 1 and 10th maxima of lambda 2 will also coincide. Okay, therefore ऐसे हम लोग को बोल सकते हैं कि lambda 1 यूज़ करके 7, 14, 21 ऐसे, और lambda 2 यूज़ करके 5, 10, 15 ये सब रेस्पेक्टिवली क्या करेगा, मीट करेगा। लेकिन हम लोग को पूछा है कि मिनिमम डिस्टेंस, हम लोग को क्या पूछा है, मिनिमम डिस्टेंस पूछा गया है। Therefore we can say that minimum distance is equal to yn is equal to 5 into lambda 2 into capital D divided by small d. It is equal to, or it is equal to 7 into lambda 1 into capital D divided by small d. 5 into lambda 2 क्या है, lambda 2 is equal to 700 nanometer, 700 into 10 raised to minus 9, 700 into 10 raised to minus 9 meters है into 10 raised to 3. ओके, इट इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 कर सकते हैं इसको, इंटू 10 रेज टू 3, इट इज इक्वल टू 35 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 मीटर। या हम लोग को लिख सकते हैं कि 3.5 मिलीमीटर, 3.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 इट इज इक्वल टू 3.5 मिलीमीटर हम लोग को लिख सकते हैं। कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही है, ऑप्शन बी होल्ड्स द करेक्ट आंसर। Hello students, this question asks, with a point source F emitting light of wavelength
600 nanometers is placed at a very small height, h, right, above a flat reflecting surface AB. So the intensity of the reflected light is 36% of the intensity, right? Now, interference fringes are observed on the screen placed parallel to the reflected surface at a very large distance d from it, right? So the first part of the question says, what is the shape of the interference fringes on the screen, right? B part asks us calculate the ratio of minimum to the maximum of the maximum intensity when the interference fringes formed near the point P, right? And the C part of the same question asks us that if the intensities at the point P, this corresponds to the surface, correspond to a maximum, calculate the minimum distance which the reflecting surface AB should be shifted so the intensity at P again becomes maximum, right? So what they are saying is, see in this diagram, this height is very small, right? They are telling us that this height at edge is very small and there's a point light source. So this light is going from here to here and it is from this mirror, only 36% of the light is reflected and fringes are formed at the screen P. And this screen is placed at a very large distance P. So let us solve one by one. What is the shape of the interference fringes on the screen? Right. So from this question, what we know that the screen is placed, the screen is placed parallel to the mirror AB. Right. So if we look at this image, right, this is a point source, right? This point P is directly overhead. So this reflected ray would be coming like this to this point, right? Now they will reflect like this back to this screen, right? Now we can say the screen is placed parallel to the mirror AB. So the points of equal optical path for direct rays from S will lie on a circle with P as the center, right? Because on P line itself, the light source is placed. So the point of equal optical path for the reflected ray will also lie on a circle with P as the center. So fringes formed would be circular. So this is the first part of our answer. Now moving on to the B part. So what does B question ask us? Calculate the ratio. B question says that calculate the ratio of the minimum to the maximum intensities in the interference fringes found near to point P. Right. So for solving B part of our question, we can say that amplitude of the incident ray is what? It is given as A1, which is equal to what? Root of I. That is, I is the intensity of the incident ray. Amplitude of the reflected is what? A2. That would be what? Root of 0.36I. Right, because 36% they are saying. So this becomes what? 0.6 into root of I. So I minimum divided by I maximum will become what? A1 minus A2 whole square divided by A1 plus A2 whole square, right? So this becomes what? This becomes root I minus 0.6 into root I whole square divided by root I plus 0.6 root I, right? Whole square, right? So this becomes what? 0.4 square divided by 1.6. So this becomes, our answer comes to 1 divided by 16. So this is the ratio, right? Now C part asks us that if the intensity at point P corresponds to a maximum, then we need to calculate the minimum distance through which the reflecting surface AB should be shifted
so that the intensity at P again becomes maximum. So we can simply say on this part that when reflecting surface is shifted in such a way that P becomes the maximum point again, so for that, this path difference between the direct and reflected ray should change by how much? This should change, the path difference should change by the path difference should change by n lambda, so that this becomes maximum. N is what? N is 1. So if we look at this AB, this mirror AB, if we move it to distance x, okay, the path difference changes by how much? The path difference changes by 2x, right? Because what we have told you earlier, that it moves by n lambda. So this becomes 2x, right? So thus we can say 2x is equal to lambda, or x is equal to what? Lambda divided by 2. So from here our answer will become lambda is how much? Lambda we have been given as, okay, so this becomes 300 nanometers, right? So this is our answer. I hope I have solved your question. Thank you. तो इस केस में बोला गया कि ऐसे 2 स्लिट्स है, ये ग्लास ट्यूब है, तो इधर सोर्स रखी हुई है 40 सेंटीमीटर्स के नीचे। तो अपन को डिफ्रैक्शन जो पैटर्न जो बन रही वो अगर यहाँ तक फिल करने के बाद वो क्यू पे बन रही है डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है, ठीक है। लिक्विड इज पोर्ड इनटू लिक्विड इनटू द वेसल फिल्ड अप टू OQ तक फिल किया गया। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज टू बी फाउंड एट Q, ठीक है। तो अपन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड फाइंड करनी है। सो इसमें सबसे पहले अपन ऐसे डायग्राम बना देते हैं जहाँ पे ऐसा दिखाया गया कि ये ऐसा जॉइन हो रहा है, फिर यहाँ पे एक रे उधर जा रहा है और दूसरी रे इधर जा रहा है। अब बोला है कि वो पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट पे S1 S2 के, और इसका विड्थ दे दिया गया, इसका भी दे दिया गया। तो अपन पाथ डिफरेंस निकालते हैं। S1 माइनस S2 इज इक्वल्स टू D साइन अल्फा, जहाँ पे ये अल्फा है, ठीक है, क्योंकि S1 में S2 भी है। जैसा यहाँ पे ऐसा ड्रॉ कर लेंगे तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। तो ये जो साइन अल्फा बच गई है, ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस D है, ठीक है, तो D साइन अल्फा हो गया। सो वैसे ही S2A माइनस S1 है, ये भी पाथ डिफरेंस ही है, इज इक्वल्स टू D साइन थीटा है। वो भी सेम, इधर से एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉप कर लेंगे तो बचा हुआ लेंथ ये आ जाएगी D साइन थीटा। सो यहाँ पे एंगल्स बहुत छोटा है, तो साइन अल्फा को tan अल्फा मान सकते हैं और साइन थीटा को tan थीटा मान सकते हैं। सो फिर सेंट्रल मैक्सिमा के लिए क्या करेंगे? सेंट्रल मैक्सिमा के लिए D साइन अल्फा इज इक्वल्स टू D साइन थीटा आ गया, ठीक है, मतलब tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan थीटा है। तो इधर से tan के वैल्यूज अगर निकालेंगे इस ट्राइंगल से और इस ट्राइंगल से, तो अपन को मिलेगा 40/200 इज इक्वल्स टू y/10। 40 ये है, 200 मतलब ये, क्योंकि सेंटीमीटर्स में 200 आता है, फिर y मतलब ये यहाँ से यहाँ तक डिवाइड बाय 10 ये, ठीक है। ये एक ट्राइंगल ले लिया गया और ये एक ट्राइंगल ले लिया गया, ठीक है। सो उस ट्राइंगल से ये रिलेशन आ गया। उसके बाद y की वैल्यू मिल जाएगा अपन को 2 सेंटीमीटर्स। सो ये बिना पानी के, अभी वाटर फिल कर दिया गया, तो वाटर के वजह से जो होगी वो अपन को पता करनी है। वो होता है μ-1 इंटू टी दैट इक्वल्स टू μ-1 इंटू 10, पाथ डिफरेंस जो है, पाथ डिफरेंस,
सो एट क्यू की जगह डी साइन अल्फा इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 10, मतलब जो चेंज हुआ है वो इससे इक्वेट कर देंगे पाथ डिफरेंस को। साइन अल्फा और टेन अल्फा दोनों एक ही है, टेन अल्फा इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 टू 10। सो इसकी वैल्यू मैंने निकाल लिया कि 0.8 बाई 10 इंटू 440 बाई 200 टू म्यू माइनस 1 इंटू 10। सो यहाँ से म्यू की वैल्यू हो जाएगी 1.0016। ये सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू इतनी आएगी। तो यही फाइंड करना था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड क्या है। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारे पास एक ग्लास है जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। इस पे एक थिन लेयर से की कोटिंग चढ़ाई गई है जिसका कि थिकनेस t है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8 है। इस पे हम लैम्डा वेवलेंथ की लाइट से नॉर्मली इंसिडेंट कर रहे हैं। तो हमारा थोड़े बहुत रेज ऊपर वाले सरफेस से और थोड़े बहुत रेज उस लेयर के नीचे वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और ये दोनों ही रेज इंटरफेयर कर रहे हैं। हमारा लैम्डा दे रखा है 648 नैनोमीटर। तो हमें निकालना है कि उस जो ये हम लेयर चढ़ा रहे हैं ग्लास स्लैब पे उसकी मिनिमम थिकनेस क्या हो कि ये रेज कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करें। तो एक काम करते हैं, इससे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा लेयर का ऊपर का सरफेस, जो हम कवर चढ़ा रहे हैं, कोट चढ़ा रहे हैं, उसका ऊपर का सरफेस, और ये हो गया उसका नीचे का सरफेस, और ये नीचे का हमारा ग्लास स्लैब हो गया। तो ग्लास स्लैब का लेट से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, तो μ1 दे रखा हमारा 1.5 और μ2 हो गया हमारा ये कोटिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये दे रखा हमारा 1.8। ठीक है, ये हमारा μ2 है और ये μ1 है। ठीक है, तो देखिए हमें बोला जा रहा है कि थोड़े बहुत ऊपर वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रहा है और थोड़े नीचे वाले से। तो लेट से किया ये हमारा रे हो गया जो कि ऊपर से रिफ्लेक्ट हो रहा है और ये हो गया हमारा जो कि नीचे से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंसिडेंट रे। लेट से कि ये हमारा रे 1 है जो कि ऊपर वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रहा है और ये रे 2 है जो कि नीचे वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो देखिए हमें इन दोनों को कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करवाना है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो रे 1 है ये डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रहा है और जो रे 2 है ये रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारा ये μ1 μ2 से कम है, तो यानी यहाँ पे हमारा जो फेज चेंज आएगा वो आ जाएगा पाई। ठीक है, तो जब भी हमारा इनिशियल फेज डिफरेंस पाई होता है तो हमारा पार्ट डिफरेंस का कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए हमारा कंस्ट्रक्टिव के लिए चाहिए, तो कंस्ट्रक्टिव के लिए अब हमारा पार्ट डिफरेंस आ जाएगा 2n-1 लैम्डा अपॉन 2, क्योंकि हमारा इनिशियल फेज डिफरेंस ऑलरेडी रे 1 और 2 का पाई है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो रे 2 एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसकी वजह से कितना आ रहा है पार्ट डिफरेंस। तो देखिए ये रे 2 एक बार यहाँ से यहाँ तक जाते वक्त और दूसरी बार यहाँ से यहाँ तक आते वक्त 2t एक्स्ट्रा कवर कर रहा है। ठीक है, यदि ये जो हमारा थिकनेस है ये t है तो हमारा फिगर से आ गया डेल्टा x इक्वल्स टू 2 म्यू टी। ठीक है, तो ये हमारा फिगर से आ रहा है और इतना हमें चाहिए कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करवाने के लिए। तो अब हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2 म्यू टी इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा अपॉन 2। अब देखिए हमें क्वेश्चन में निकालना है मिनिमम थिकनेस, तो टी मिन होने के लिए हमें ये वाला टर्म भी मिनिमम करना पड़ेगा। लैम्डा तो हमारा फिक्स है तो हम एन ही मिनिमम कर सकते हैं, तो एन मिनिमम पॉसिबल है हमारा 1, तो हम ले लेंगे n इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2 म्यू टी इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2। ये हमारा टी मिनिमम है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा टी मिनिमम इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 4 म्यू, और ये जो हमारा म्यू है ये हमारा कोटिंग का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि हमने μ2 लिया है, तो ये हो जाएगा 4 μ2। ठीक है, अब सबका वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा लैम्डा दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन में 648 नैनोमीटर, तो ये हो जाएगा 648 इंटू 10⁻⁻9 मीटर अपॉन 4 इंटू μ2 दे रखा है हमारा 1.8। ठीक है, इसे सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 इंटू
10⁻⁻8 मीटर, ठीक है। तो हमें देखिए क्वेश्चन में देखिए हमें थिकनेस चाहिए भी था 10⁻⁻8 के टर्म्स में, तो हमारा आंसर भी वही आ रहा है 9 × 10⁻⁸ मीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर। हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें गिवन है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, यहाँ पर पूरा मीडियम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 4/3। तो अब ये एक्सपेरिमेंट एयर में नहीं हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3 उस मीडियम में हो रहा है। अ लाइट ऑफ 600 नैनोमीटर वेवलेंथ इज फॉलिंग ऑन द स्लिट्स हैविंग 0.45 मिलीमीटर सेपरेशन। तो स्लिट्स के बीच की जो सेपरेशन है वो कितनी है, स्मॉल डी, उसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है, 0.45 मिलीमीटर। लोअर स्लिट S2 इज कवर्ड बाय थिन ग्लास शीट ऑफ थिकनेस दिस। तो शीट की थिकनेस है 10.4 म्यू मीटर माइक्रोमीटर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है शीट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इसको लिख देते हैं म्यू टी, जिसकी वैल्यू कितनी है 1.5। ओके, द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट डिस्टेंस 1.5 मीटर फ्रॉम द स्लिट्स आर शोन। तो कैपिटल डी की वैल्यू कितनी गिवन है, ये वाली 1.5 मीटर, ठीक है। अब क्या निकालना है, फाइंड द लोकेशन ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंज विद 0 पार्ट डिफरेंस ऑन द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे हमें बात करनी है कि 0 पार्ट डिफरेंस वाला ब्राइट फ्रिंज हमें कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, टोटल पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए 0, और टोटल पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखिए किसी भी पॉइंट P पे अगर मैं लिखूं पार्ट डिफरेंस तो वो कितना हो जाएगा, इसका पार्ट डिफरेंस देखिए यहाँ से, और ये वाली रेज जब यहाँ से जाएगी, ठीक है, तो चेंज इन P मतलब टोटल पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा S2P माइनस S1P, ठीक है। अब S2P माइनस S1P कितना लिख सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा, अगर ये बीच में स्लैब ना होती यहाँ पर, मतलब थिन फिल्म ना होती, तो क्या होता, यहाँ पे D sin थीटा होता, ठीक है, जहाँ पे थीटा क्या है, ये वाला एंगल थीटा, ठीक है। तो D sin थीटा होता पार्ट डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये वाली थिकनेस और ऐड हो गई है, तो इस वाली थिकनेस की वजह से क्या हो जाएगा, कुछ पार्ट डिफरेंस आ जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, म्यू टी डिवाइड बाय म्यू जो मीडियम का है -1 टाइम्स जो थिकनेस है स्लैब की। क्यों आया है ये, क्योंकि देखिए जब ये मान लीजिए स्लैब नहीं थी, तब यहाँ पे मैं बोल देता हूँ S2, इसको P' बोल देता हूँ पॉइंट को जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जब ये स्लैब नहीं थी तब चेंज इन P अगर मैं किसी P' पॉइंट पे लिखता तो कितना हो जाता, S2P' माइनस S1P', और वो वैल्यू किसके इक्वल हो जाती, D sin थीटा के, ठीक है। तो नॉर्मल पार्ट डिफरेंस है, तो इसमें क्या था, S2P माइनस S1P में ये वाली डिस्टेंस भी कवर हो रही थी जो कि इसकी स्लैब की थिकनेस है, ठीक है। तो अब अगर ये स्लैब रखी हुई है यहाँ पे, तो अब चेंज इन पाथ कितना हो जाएगा, मतलब पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये इसको P' बोल देते हैं। अब ये वैल्यू आएगी S2P माइनस S1P, ठीक है। और इसमें ये वाली जो थिकनेस है ये 2 बार ऐड हो रही है, तो 2 बार कंसीडर नहीं करना है इसको, तो एक बार कंसीडर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें देखिए जो S2P माइनस S1P था इनिशियली, अगर ये थिकनेस नहीं होती यहाँ पे, तो S2P' माइनस S1P', ठीक है। यहाँ पे P' का पॉइंट क्या है, यहाँ पे P' पॉइंट P ही है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्लैब रख के बात कर रहे हैं, ठीक है। तो S2P माइनस S1P, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी D sin थीटा। ये हमने पार्ट डिफरेंस निकाला है कब, जब ये यहाँ पे थिन स्लैब नहीं होती, थिन फिल्म नहीं होती, ठीक है, तब D sin थीटा होता सिर्फ, और उसमें ये वाली थिकनेस भी कवर कर चुका है ये, ठीक है, ये वाली थिकनेस भी ट्रेवल कर चुका है उस वाले मीडियम में ही, जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है 4/3। लेकिन अब हमने 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम रख दिया है, तो उसमें कितना कवर करेगा, देखिए उसमें जो T थी, क्योंकि हमें पता है कि स्पीड स्लो हो जाती है किसी और मीडियम में जाते ही, किसी डेंसर मीडियम में जाते ही स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, तो म्यू टाइम्स T ये एक्स्ट्रा बात कवर करेगा। लेकिन अब क्या हुआ, इसमें हमने T थिकनेस कवर कर ली थी, इसमें वापस से कवर कर ली, तो इसमें से हमें एक बार माइनस करनी पड़ेगी T थिकनेस, ठीक है। और ये क्या होता है यहाँ पर, ये जो डिस्टेंस इसने अभी कवर की है, जब यहाँ पे 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम रख दिया गया है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये इसने रिलेटिवली कितनी स्पीड से ट्रेवल की है वो हमें देखना है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पे म्यू जो आएगा वो रिलेटिव आएगा, तो म्यू आर लिख देते हैं इसको, और म्यू आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी,
ये हो जाएगी म्यू ऑफ जो हमने यहाँ पे थिन फिल्म रखी है, ठीक है, तो फिल्म डिवाइड बाय जो म्यू है मीडियम का, ठीक है। तो अब इसको लिख लेते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा, डी साइन थीटा माइनस टी प्लस म्यू एफ अपॉन मतलब म्यू फिल्म अपॉन म्यू मीडियम टाइम्स जो इसकी थिकनेस है, ठीक है। तो ये हो गया टोटल पार्ट डिफरेंस। अब पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल आ जाएगा, अब ये पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए, फॉर सेंट्रल मैक्सिमम, जहाँ पर भी सेंट्रल मैक्सिमम लाई करेगा वो जीरो होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमम पे पार्ट डिफरेंस जीरो होगा तभी वो सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा, ठीक है। तो डी साइन थीटा माइनस टी प्लस म्यू एफ अपॉन म्यू एम टाइम्स टी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डी साइन थीटा इक्वल्स कितना, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास टी माइनस म्यू एफ अपॉन म्यू मीडियम टाइम्स टी, और टी यहाँ से बाहर निकाल लिया, 1 माइनस म्यू एफ की वैल्यू कितनी थी 3/2 मतलब कि 1.5, और इसकी वैल्यू कितनी थी 4/3, तो यहाँ से कितना आ गया 1 माइनस 9/8, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई माइनस t/8, तो ये डी साइन थीटा हो गया, ओके। अब यहाँ से अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा को हम लोग थीटा से इक्वेट कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, और थीटा को टेन थीटा से, ठीक है। और टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी जिस पॉइंट पे हमें मिल रहा है उस पॉइंट को हम लोग y बोल देते हैं, तो y डिवाइडेड बाय जो ये डिस्टेंस है d, ठीक है। तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, टेन थीटा टाइम्स d इक्वल्स माइनस t/8, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, y डिवाइड बाय d टाइम्स स्मॉल d इक्वल्स t/8 लेकिन माइनस के साथ, तो यहाँ पे y इक्वल्स माइनस t/8 टाइम्स कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी, y की वैल्यू निकालनी थी हमें तो वो वैल्यू आ गई, तो ये वाली वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस t की वैल्यू कितनी थी, t की वैल्यू थी 10.4 म्यू मीटर, तो 10.4 टाइम्स 10⁻⁶ टाइम्स d की वैल्यू कितनी थी 1.5 डिवाइड बाय 8 टाइम्स स्मॉल d की वैल्यू कितनी थी वो भी देख लेते हैं, 0.45 मिलीमीटर, तो 0.45 टाइम्स 10⁻3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, माइनस 13/3 सॉरी 13.3 नहीं 13/3 किस में, मिलीमीटर्स में, तो ये मिलीमीटर में हो गया, ठीक है। माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो लाई कर रही है y की वैल्यू ये किस तरफ है, O के नीचे, ठीक है। तो हमारा जो सेंट्रल मैक्सिमम आएगा वो यहाँ पर कहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा गया है, सेकंड पार्ट क्या है इसका, बी पार्ट है, फाइंड द लाइट इंटेंसिटी एट पॉइंट 2 रिलेटिव टू द मैक्सिमम फ्रिंज इंटेंसिटी, तो मैक्सिमम फ्रिंज इंटेंसिटी पूछी है, तो यहाँ पर O पर जितनी इंटेंसिटी होगी उसकी इंटेंसिटी पूछी है किसके रिलेटिव, मैक्सिमम फ्रिंज इंटेंसिटी के। तो मैक्सिमम फ्रिंज इंटेंसिटी कब होगी, जब पार्ट डिफरेंस 0 हो जाएगा, मतलब सेंट्रल मैक्सिमम की जो इंटेंसिटी होगी, ठीक है। तो y इक्वल टू माइनस 13/3 पे जो आएगी, तो अब हमें O पॉइंट पर जो इंटेंसिटी निकालनी है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, O पॉइंट पर हमें पार्ट डिफरेंस निकालना पड़ेगा, पार्ट डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो इंटेंसिटी होती है किसी भी पॉइंट P पर वो क्या हो जाती है, I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस रूट I1 रूट I2 कॉस फाई, ठीक है। फाई क्या है, पार्ट डिफरेंस से जो फेज डिफरेंस आया, पार्ट डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस उस पॉइंट P पर, ठीक है। तो हमें O की बात करनी है, O की बात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, IO इज इक्वल टू, दोनों की इंटेंसिटी इक्वल है और दोनों की इंटेंसिटी को I मानते हैं सोर्सेज की, ठीक है। तो I प्लस 2 रूट I टाइम्स I टाइम्स कॉस फाई एट O, और फाई एट O निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पहले पार्ट डिफरेंस निकालना पड़ेगा O पे, तो पार्ट डिफरेंस एट O कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे S2O माइनस S1O, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं इसको, S2O माइनस S1O को, यहाँ पर ये इसमें देखिए कौन कौन सा पाथ का डिफरेंस आ रहा है, तो जब ये यहाँ पर स्लैब नहीं होती, मतलब ये थिन फिल्म नहीं होती, तब यहाँ पर ये दोनों पार्ट डिफरेंस इक्वल हो जाते हैं और O पे हमारा सेंट्रल मैक्सिमम बनता है, ठीक है। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे एक्स्ट्रा जो पार्ट डिफरेंस आ गया वो किसकी वजह से आ गया, स्लैब की वजह से, तो जो पार्ट डिफरेंस होगा टोटल वो सिर्फ स्लैब की वजह से होगा, और जो कि कितना निकाला था हमने स्लैब की वजह से, म्यू टी अपॉन म्यू एम माइनस 1 या फिर म्यू एफ अपॉन म्यू एम माइनस 1 टाइम्स टी, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो टर्म होगा डी साइन थीटा, ये वाला टर्म कितना हो जाएगा 0, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 0 है O पॉइंट के लिए, ठीक है।
और थीटा को फाई के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि थीटा क्या है, एंगल जो कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन बता रहा है ऑन द स्क्रीन, लेकिन फाई क्या है, उस पॉइंट पर फेज डिफरेंस बता रहा है उन दोनों सोर्सेज के बीच में। ठीक है, तो S2O माइनस S1O जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू एफ अपॉन मतलब म्यू फिल्म अपॉन म्यू मीडियम -1 टाइम्स टी जो थिकनेस है। ठीक है, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये था 3/2 डिवाइड बाय 4/3 -1 टाइम्स टी की वैल्यू कितनी थी, टी की वैल्यू यहाँ पे गिवन थी 10.4 म्यू मीटर, तो 10.4 टाइम्स 10⁻⁶ जिसकी वैल्यू कितनी हो गई 1/8, क्योंकि यहाँ से 9/8 आया था, 9/8 -1 दैट इज 1/8 टाइम्स 10⁻⁶ टाइम्स 10.4। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी 13 टाइम्स 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, ये पार्ट डिफरेंस हो गया इस पॉइंट O पे, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, चेंज इन फाई अपॉन 2 इक्वल टू चेंज इन P एट O डिवाइड बाय यहाँ पे कितना लैम्डा। ठीक है, और ये चेंज इन फाई एट O पूछा है, तो चेंज इन फाई एट O कितना हो जाएगा, चेंज इन P कितना है 13 टाइम्स -7 टाइम्स 2 डिवाइड बाय लैम्डा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे गिवन है, देखिए लैम्डा की वैल्यू है 600 नैनोमीटर, तो यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 600 टाइम्स 10⁻⁹। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, चेंज इन फाई एट O इक्वल्स 13/3 टाइम्स पाई, तो 13π/3 आ गया ये चेंज इन फाई एट O। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं इंटेंसिटी की वैल्यू एट O। इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2I + 2I cos फाई। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2I को अगर मैं बाहर लेता हूँ तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 + cos फाई। ठीक है, और I मैक्स की अगर बात करें जो सेंट्रल मैक्सिमम पे इंटेंसिटी होगी, तो सेंट्रल मैक्सिमम पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 2I + 2I cos फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे फेज डिफरेंस कितना था 0, तो सेंट्रल मैक्सिमम पे फेज डिफरेंस 0 होता है, तो इसलिए यहाँ पे कितना आ जाएगी वैल्यू 4I। ठीक है, अब 4I की रिस्पेक्ट में हमें निकालनी है, तो I0 कितना हो जाएगा, मतलब I एट O इक्वल टू 2I 1 + cos फाई को क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस cos स्क्वायर 5/2। ठीक है, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, ट्वाइस cos स्क्वायर 5/2 मतलब कि 13π/6, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी 4I टाइम्स cos स्क्वायर 13π/6। ओके, अब 4I जो थी वो इंटेंसिटी किसकी थी, मैक्सिमम इंटेंसिटी जो सेंट्रल मैक्सिमम की इंटेंसिटी थी। ठीक है, तो I0 इक्वल टू I मैक्स टाइम्स cos स्क्वायर 13π/6, तो इसको लिख सकते हैं कैसे 13π/6 को cos 2π + π/6 का स्क्वायर, 2π + π/6 कितना होता है, यहाँ पे cos π/6, और cos π/6 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो I मैक्स टाइम्स 3/4 आ जाएगा यहाँ पे, तो I0 की वैल्यू मतलब I एट O कितना हो जाएगा, I एट O अपॉन I मैक्सिमम इक्वल टू 3/4, तो यही हमें निकालना था। ये हो गया बी पार्ट। अब सी पार्ट में क्या पूछा गया वो देख लेते हैं। नाउ इफ 600 नैनोमीटर लाइट इज रिप्लेस्ड बाय वाइट लाइट ऑफ रेंज 400 to 700 नैनोमीटर, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट फॉर्म मैक्सिमा एग्जैक्टली एट पॉइंट O। तो पॉइंट O पर अब क्या बनवाना है, मैक्सिमा बनवाना है। तो पॉइंट O पर जो फेज डिफरेंस निकाला था उसकी वैल्यू कितनी थी वो देखते हैं यहाँ से। वो यहाँ पे निकाला था पॉइंट O पर T/8 होना चाहिए फेज डिफरेंस, ठीक है। यहाँ से निकाली थी वैल्यू, और इसके लिए भी निकाली थी फाई के लिए। जब हम फाई की वैल्यू निकाल रहे थे तब देखिए ये वाली वैल्यू कितनी आई थी, ये T था, ये वाली वैल्यू आई थी 1/8। तो T/8 इसकी वैल्यू होनी चाहिए। जो पॉइंट O है उस पर जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, चेंज इन P एट O T/8। अब ये पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए, ये पार्ट डिफरेंस होना चाहिए इक्वल n टाइम्स लैम्डा के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें सेंट्रल मैक्सिमम बनवाना है, ठीक है। तो मैक्सिमम बनवाना है तो n टाइम्स लैम्डा होनी चाहिए, हमें पता है कंडीशन होती है, ठीक है। और सॉरी सेंट्रल मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम बनवाना है यहाँ पे, इसलिए n लैम्डा होनी चाहिए। सेंट्रल मैक्सिमम के लिए तो पार्ट डिफरेंस कितना होता है 0, तो T/8 की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, n लैम्डा के इक्वल। तो यहाँ पे बेसिकली T/8 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो n लैम्डा इक्वल्स T/8 की वैल्यू कितनी थी 10.4 म्यू मीटर था ये, तो 10.4 टाइम्स 10⁻⁶ डिवाइड बाय 8 दैट इज इक्वल टू कितना था ये 1300 नैनोमीटर आ जाएगा।
तो एन लेमडा 1300 नैनोमीटर के इक्वल होना चाहिए, और यहाँ पे लेमडा की रेंज कितनी दे रखी है 400 से 700 नैनोमीटर। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग यहाँ से लेमडा निकाल के, लेमडा इक्वल्स 1300 नैनोमीटर बाय एन। ठीक है, ये एन नैनो के इक्वल नहीं है, ये एन है इंटीजर, जहाँ पे एन क्या है एक इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो एन की वैल्यू 1 पे 1300 आएगा। जब एन की वैल्यू 2 हो जाएगी तब लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 650 नैनोमीटर। ठीक है, जब एन की वैल्यू 3 हो जाएगी तब लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 433.33 नैनोमीटर। ठीक है, और जब एन की वैल्यू 4 हो जाएगी तब लेमडा की वैल्यू हो जाएगी 325 नैनोमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से रेंज क्या गिवन थी 400 से 700, तो लेमडा बिलोंग टू 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। ठीक है, ये हमें गिवन था, तो इस रेंज में जितनी वैल्यूज आ रही हैं लेमडा की वो वैल्यूज एक्सेप्टेबल है, बाकी वैल्यूज एक्सेप्टेबल नहीं है। तो 650 एक्सेप्टेबल है, 433 एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो ये दोनों वेवलेंथ हो सकती हैं इसकी, और 325 नहीं हो सकती। तो बस यही करना था इस क्वेश्चन में। सो दैट्स इट, थैंक यू एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। Hello, we are given the question, and the question say a coherent parallel beam of microwaves of wavelength lambda equals to 0.5 millimeter falls on a Young's double slit apparatus. The separation between the slits is 1 millimeter. The intensity of microwave is measured on the screen placed parallel to the plane of slits at a distance 1 meter from it. If the incident beam falls normally on the double slit apparatus, find the order of interference minima on the screen, right? So how many interference occurs? So what we can say is, let's take a point P here, right? So that makes angle theta, right, from this way. So when theta is approximately equal to 90 degree, right? When that point becomes very far, right, that becomes almost 90 degree. At that time, that would be the last minimum occurring on the screen, right? So that is why we take theta to be 90 degree. It's not the incident angle, right? It's the angle from this point till the last minimum, right? That is the angle. So when that becomes 90 degree, since we have a formula that is the part difference here would be equal to, this would be equal to d sine theta. How? Because this is theta, right? From the figure, from the geometry, this is theta, right? So according to that, according to trigonometry formula, this would be d sine theta. So d sine theta would be equal to, the part difference for minima is 2n minus 1 lambda by 2, right? From where n is equal to 1 and so on, right? 1, 2 and so on. So now if we have this, right, since we are putting theta to be 90 degree, d is given as 1 millimeter. So 1 into 10 to the power minus 3 into sine 90, that is 1. That would be equal to 2n minus 1 lambda, that is 0.5 millimeter, 0.5 into 10 to the power minus 3 by 2, correct? So from here 2n minus 1 would be equal to 4. So from here n is equal to 2.5. So only 2.5. So 0.5 minima cannot occur. So the maximum number of n would be equal to 2, right? And minimas would be occurring on either side of the central maxima, right? So on upper side there would be 2 and on lower side there would be 2. This is central maxima. Then maxima would be here, right? Like this. So these are not the pattern, but the like the consecutive version of fringes, right? So there would be 2 upper maxima. So the total minima. We want to find minima, right? So the total minima that would be occurring is this 2 plus this 2 on either side. So total 4 are occurring, right? So our answer would be total 6, total 8. No, only the first order, no.
only the first order and second order minima are possible. So option B is our answer. Thank you. आइए पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक यंग्स एक्सपेरिमेंट है जो कि हमें दिया है एक रेड लाइट का सोर्स है जिसकी वेवलेंथ है 7 × 10⁻⁻7 मीटर, और हमें क्या दिया है उसमें एक थिन ग्लास प्लेट है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, और उसकी जो वेवलेंथ है वो हम पुट कर रहे हैं एक पाथ पर जिसके इंटरफेरेंसिंग बीम है और उससे क्या करते हैं जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है जो कि शिफ्ट हो रही है 10⁻³ मीटर, और हम देख रहे हैं कि जो उसकी जो प्रीवियस पोजीशन है जो कि ऑक्यूपाइड कर रही है 5th ब्राइट फ्रिंज, और हमें इसमें फाइंड करना है थिकनेस ऑफ प्लेट, और हमें देखना है कि जो हमें सोर्स दिया है जो कि चेंज हो रहा है ग्रीन लाइट में, और उसकी जो वेवलेंथ है वो है 5 × 10⁻⁻7 मीटर, और हमें जो दिया है कि जो सेंट्रल फ्रिंज है जो कि शिफ्ट हो रही है उसकी इनिशियल पोजीशन पे जो कि ऑक्यूपाइड कर रहा है 6th ब्राइट फ्रिंज जो कि रेड लाइट है, और हमें इसमें फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो कि ग्रीन लाइट की है, और हमें देखना है हमें ये दिया है जो कि ये हमारी स्लिट 1 है और ये हमारी स्लिट 2 है, और जो इसका जो डिस्टेंस है वो हमारा d sin थीटा है, और ये जो हमारा ये है ये हमारा 30 डिग्री एंगल है जो कि ये, और ये हमें थीटा दिया है, ये हमारा 90 डिग्री एंगल है, और ये भी हमारा थीटा दिया है, और ये भी हमारा थीटा है जो कि वर्टिकल अपोजिट एंगल से हो रहा है, और ये है जो हमें 90 डिग्री दिया है, और हमारा जो पॉइंट है जिसे हमने P1 माना है जो कि हमारा रेड लाइट और ब्लू लाइट के लिए है, ग्रीन लाइट के लिए है, और जो कि है ये हमारा इनिशियल सोर्स P है, और जो हमारा जो मानते हैं कि O से लेके जो P का जो डिस्टेंस है वो हमने y0 माना है। आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि जो कि ये जो P पॉइंट है ये हमारा पाथ डिफरेंस पॉइंट है। आइए हम देखते हैं पाथ डिफरेंस पॉइंट P इक्वल्स टू S2P माइनस S1P माइनस T प्लस म्यू T, जो कि हमें दिया है S2P माइनस S1P माइनस म्यू T माइनस 1 × T इक्वल्स टू XD अपॉन कैपिटल D माइनस म्यू माइनस 1 × T if पॉइंट P इज सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, जो कि हमें दिया है इसने XD अपॉन कैपिटल D माइनस म्यू माइनस 1 × T इक्वल्स टू 0। हमारा X आया म्यू माइनस 1 T कैपिटल D y D, जो कि है हमारा इफ देयर वेयर 5th ब्राइट फ्रिंज, जो कि है x इक्वल्स टू 5 बीटा, जो कि हमने इक्वेशन माना है 2, और हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो कि हमें दिया है। आइए देखते हैं जो 5 बीटा इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 TD y स्मॉल d, जो ये हमारा है ये स्मॉल d है 5 लैम्डा r कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 × T कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। आइए हम वैल्यू पुट करते हैं जो कि T 5 × 7 × 10⁻⁻7 अपॉन 1.5 माइनस 1 implies that T इक्वल्स टू 7 म्यू एम। जो हमारी थिकनेस है वो आई हमारी 7 म्यू एम। आइए हम देखते हैं जो कि है फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ग्रीन लाइट के लिए, जो कि है x इक्वल्स टू म्यू माइनस 1
टी कैपिटल डी वाई स्मॉल डी 6 बीटा इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और हमें देखना है कि जो वैल्यू पुट कर रहे हैं हम 6 जो कि लैम्डा है वो ग्रीन लाइट का है, स्मॉल डी अपॉन डी इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल डी वाई स्मॉल डी implies that mu minus 1 equals to 6 into 7 into 10 to the power minus 7 upon 7 into 10 to the power minus 6, जो कि हमारी म्यू की जो वैल्यू आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वो आई 1.6। और आइए हम ये देखते हैं कि हमें जो चेंज हो रही है फ्रिंज विथ वो क्या होगी। चेंज इन फ्रिंज विथ जो कि है बीटा इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी वाई स्मॉल डी जो कि इक्वेशन 1, और डेल्टा बीटा इक्वल्स टू डेल्टा लैम्डा इनटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी जो कि हमने इक्वेशन मानी 2। और हम देखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 से, जो कि हमें इन्हें इक्वेट करने के बाद आया हमारा लैम्डा और डेल्टा बीटा अपॉन बीटा इक्वल्स टू डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा जो कि हमने इक्वेशन 3 मानी। और हम देखते हैं इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, जो कि है डेल्टा बीटा इक्वल्स टू 5 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू बीटा अपॉन लैम्डा रेड लाइट के लिए जो कि हम पुट कर रहे हैं बीटा की वैल्यू x/5 जो कि है हमारी 10 टू द पावर -3 अपॉन 5 मीटर। डेल्टा बीटा इक्वल्स टू -2 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर -7 implies that delta v equals to -0.4 upon 7 into 10 to the power -3 मीटर। डेल्टा बीटा इक्वल्स टू 0.4 अपॉन 7 mm जो कि डिक्रीज हो रहा है। ये हमारा डेल्टा वी है। हमारे तीनों ऑप्शन आ गए। हमने थिकनेस निकाली जो कि हमारी थिकनेस आई थी वो आई थी 0.7 म्यू एम 7 म्यू एम आई थी। और जो हमारा म्यू आया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया था म्यू इक्वल्स टू 1.6 आई थी। और जो हमारी डेल्टा वी आया है जो कि फ्रिंज की विड्थ है वो हमारी आई है 0.4 अपॉन 7 और जो कि डिक्रीज हो रही है। और यही हमारे आंसर हैं इस क्वेश्चन के। सो एंगुलर विड्थ दिया हुआ है कि मेजर कर रहे हैं अपन, वो स्लिट पे इतनी वेवलेंथ की लाइट दी गई है। जब स्लिट की जो विड्थ रहती है वो 30% डिक्रीज किया गया, ठीक है। जब एक और वेवलेंथ की लाइट इल्यूमिनेट किया गया तो अपन को कैलकुलेट करना है लाइट की वेवलेंथ एंड सेम डिक्रीज इन एंगुलर विड्थ सेंट्रल मैक्सिमम से जो डिक्रीज करेगी जब लिक्विड में इमर्स किया गया उस एपरेटस को, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड भी पता करनी है अपन को। सबसे पहले जो दी हुई है कंडीशन वो लिख लेंगे अपन। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ये जानते ही अपन, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इसका वैल्यू होता है 2 λ/a। फिर λ1 जो पहले लाइट यूज कर रहे हैं अपन 600 नैनोमीटर है, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ होगी 2 λ/a
लैम्डा 2 नहीं पता, और थीटा 2 इज इक्वल्स टू थीटा 1 बोला गया इंटू 0.7, क्योंकि 30% कम हुआ मतलब 70% बच गया, दैट इक्वल्स टू 2 लैम्डा 2 बाई ए। सो फर्स्ट हैंड इक्वेशन से इन दोनों इक्वेशन से रिलेशन निकाल सकते हैं, वो है कि 1 बाई 0.7 इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, दैट इक्वल्स टू लैम्डा 1 पता है, लैम्डा 2 निकल जाएगा यहाँ से, लैम्डा 2 इक्वल्स टू 420 नैनोमीटर्स, ये निकल गया। जब ये एपरेटस लिक्विड में इमर्स किया गया तब क्या होगी, तब लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 बाई म्यू होगी, ये रिलेशन हो जाएगा। सो थीटा 2 इज इक्वल्स टू थीटा 1 इंटू 0.7 है, सो 2 लैम्डा 1 बाई म्यू बाई ए इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा 1 बाई ए इंटू 0.7, ये आ गया। तो अब इन दोनों इक्वेशन से अपन ये निकाल सकते हैं कि 1/7 1 बाई 0.7 इज इक्वल्स टू म्यू, तो म्यू इक्वल्स टू 10/7, उसकी वैल्यू होगी 1.42 के आसपास। तो अपन सेकंड आंसर भी आ गया, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड निकालना था। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हम एक नैरो मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट ग्लास स्लैब पे इंसिडेंट कर रहे हैं। यहाँ पे 2 ग्लास स्लैब कंटिन्यूसली रखा हुआ है, ठीक है। each ग्लास स्लैब यहाँ पे 25% ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है और बाकी ट्रांसमिट कर देता है, ठीक है। तो हमें जो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे है, इन दोनों के इंटरफेरेंस से जो रिजल्टेंट वेव बनेगा उसका मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो चाहिए। तो देखिए यहाँ से लेट्स से कि हमारा आई नॉट है जो कि जा रहा है, पहले इनिशियली हमारा इंटेंसिटी आई नॉट है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन में बोला कि हमें कि 25% ऑफ लाइट ये रिफ्लेक्ट कर देता है, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी 0.25 आई नॉट, बाकी ट्रांसमिट हो रहा है तो इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी हमारी 0.75 आई नॉट, ठीक है। और यहाँ पे ये वापस से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू 0.75 आई नॉट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रे की जो इंटेंसिटी है उसका 25% ही रिफ्लेक्ट होगा, तो 0.25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो ये EF रे है यानी कि जो बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे ट्रांसमिट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर देगा 25% और बाकी 75% ये ट्रांसमिट हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा अपना 0.75 इंटू 0.25 इंटू 0.75 आई नॉट, ठीक है। तो लेट से कि इसे हम रे 1 मान लेते हैं और इसे हम रे 2 मान लेते हैं, तो यानी कि हमारा I1 हो गया 0.25 आई नॉट, ठीक है, जिसे कि हम लिख सकते हैं I नॉट अपॉन 4, और I2 हो गया हमारा 0.75 इंटू 0.25 इंटू 0.75 आई नॉट, ठीक है। तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं 9/64 आई नॉट। तो हमें चाहिए इन दोनों के इंटरफेरेंस से जो वेव बन रहा है उसके रिजल्टेंट का मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो। तो हमारा आ जाएगा आई मैक्स अपॉन आई मीन इक्वल्स टू, आई मैक्स होता है हमारा √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और आई मीन होता है हमारा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यदि हम नीचे ऊपर I2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाएगा, वैसे यहाँ पे I1 अपॉन I2 निकालना जरूरी नहीं, हमारे पास I1 I2 दोनों अलग अलग भी दे रखा है, तो अलग अलग ही पुट कर देते तो ये हो जाएगा I नॉट अपॉन 4 का रूट, ठीक है, प्लस I2 है हमारा 9/64 आई नॉट, तो हो जाएगा √9/64 आई नॉट अपॉन I1 माइनस I2 यानी कि √I नॉट अपॉन 4 माइनस √9/64 आई नॉट का ऊपर नीचे दोनों का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा, पहले तो हम √I नॉट ऊपर नीचे से कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 प्लस 3/8 का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा हमारा 1/2 माइनस 3/8 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 49, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेशियो 49:1, तो ये हो गया हमारा आंसर। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमने देखिए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है। इसमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट मोनोक्रोमैटिक लाइट का
यूनिफॉर्मली हमारा अपर्चर ए एंड बी पे इंसिडेंट हो रहा है। हम देख सकते हैं फिगर में हमारा अपर्चर ए एंड बी है जिसका कि रेडियस दे रखा है। ए का रेडियस है 0.001 मीटर एंड बी का रेडियस है 0.002 मीटर। इस पर हम 6000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ का लाइट एमिट कर रहे हैं जिसका कि इंटेंसिटी दे रखा है हमारा 10/पाई वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ए अपर्चर के सामने हमने एक ट्रांसपेरेंट फिल्म रख दिया जिसका कि थिकनेस दे रखा है हमारा 2000 एंगस्ट्रॉम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है हमारा 1.5, ठीक है। तो हमें इस पॉइंट एफ पे देखिए हमने बीच में एक लेंस रखा है कन्वेक्स लेंस जिसकी वजह से कि ये सारे रे हमारे एफ पे मिल रहे हैं और हमें एफ पॉइंट पे पावर निकालना है, ठीक है। हमें टोटल पावर जितना भी एफ पे रिसीव हो रहा है वो हमें निकालना है और हमें दे रखा है कि ये जो अपर्चर है ए एंड बी ये दोनों जितना भी लाइट ये रिसीव कर रहा है उसका 10% ये ओरिजिनल डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब 10% है जो कि एफ की ओर पहुंच रहा है बस, ठीक है, ओरिजिनल डायरेक्शन में। तो अब हम निकाल लेते हैं एफ पे कि हमारा कितना होगा पावर। तो उसके लिए पहले तो हम निकाल लेते हैं कि ये जो हमारा ए और बी अपर्चर है ये कितना पावर रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं पावर रिसीव्ड। लेट्स से कि हमारा ए पे जो रिसीव हो रहा है उसे पीए से डिनोट कर लेते हैं और जो बी पे रिसीव होगा उसे पीबी से, ठीक है। तो पीए हो जाएगा हमारा इंटेंसिटी हमारा 10/पाई वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और हमारा रेडियस दे रखा है लेट्स से कि आर ए है तो ये पाई आर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस पूरे ए अपर्चर से जितना इंटेंसिटी वो रिसीव कर रहा वो हमारा टोटल पावर हो जाएगा, ठीक है। तो सबका वैल्यू पुट कर देते ये हो जाएगा हमारा 10/पाई इंटू पाई हमारा आर दे रखा है, ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा तो ये हटा दो, आर ए स्क्वायर तो हमारा हो जाएगा 0.001 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 10⁻⁻5 वॉट। उसी तरह पी भी निकाल लेते हैं 10/पाई इंटू पाई आर बी स्क्वायर, ठीक है। ये पाई हमारा कैंसिल हो गया तो ये हो गया हमारा 10 इंटू आर बी दे रखा था हमारा 0.002 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया हमारा 4 इंटू 10⁻⁻5 वॉट। अब देखिए दोनों अपर्चर जो है वो 10% ही रिलीज कर रहा है जितना पावर रिसीव कर रहा है उसका, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं पावर रिलीज्ड पीए हो जाएगा हमारा, फिर लेट से किसे पीए डैश मान लेते हैं जितना रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो जितना वो रिसीव कर रहा है उसका 10% तो हो जाएगा 10/100 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 10⁻⁻6 वॉट और हमारा पीवी डैश हो जाएगा 10/100 इंटू पीबी, ठीक है, विच इज 10/100 इंटू पीबी है हमारा 4 इंटू 10⁻⁻5 वॉट। तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 10⁻⁻6 वॉट, ठीक है। अब देखिए हमारा पार्ट डिफरेंस इस ग्लास स्लैब की वजह से ये जो थिन फिल्म हमने पुट करा ये देख लेते हैं किसकी वजह से कितना आ रहा है हमारा पार्ट डिफरेंस। तो हो जाएगा हमारा पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला होता है हमारा ग्लास स्लैब की वजह से म्यू माइनस 1t, ठीक है। तो इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, म्यू दे रखा हमारा 1.5 और थिकनेस दे रखा हमारा 2000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो हमारा पार्ट डिफरेंस आ गया 1000 एंगस्ट्रॉम। अब हम निकाल लेते हैं कि हमारा फेज डिफरेंस कितना होगा। तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है हमारा 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस, सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। लैम्डा दे रखा है हमारा 6000 एंगस्ट्रॉम और पार्ट डिफरेंस हमारा है 1000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये आ गया हमारा π/3। अब देखिए हमें फेज डिफरेंस पता है और हमारा पी ए पी बी पता है तो अब हम निकाल सकते हैं कि पॉइंट एफ पे कितना पावर होगा। और देखिए ये जो हमने बीच में लेंस रखा है ये बेसिकली पावर को एक पॉइंट तक पहुंचा रहा है इंटेंसिटी को, ठीक है। ये हमारा ना ही मतलब जितना भी पावर है पूरा ही ये एफ तक जाने दे रहा है,
ये बिल्कुल भी एब्जॉर्ब या डायरेक्ट नहीं कर रहा है, ये बेसिकली एफ की ओर बेंड कर रहा है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा पावर एट पॉइंट एफ, पावर एट एफ हो जाएगा हमारा पी एफ इक्वल्स टू पी ए डैश प्लस पी बी डैश प्लस 2 रूट अंडर पी ए डैश पी बी डैश कॉस फाई, ठीक है। फाई हमारा फेज डिफरेंस हो गया यहाँ, तो सबका वैल्यू पुट कर देंगे। पी ए डैश हमारा 10 टू की पावर -6, पी बी है हमारा पी बी डैश 4 इंटू 10 टू की पावर -6 वाट, 2 इंटू 10 टू की पावर -6 इंटू 4 इंटू 10 टू की पावर -6 कॉस फाई हमारा पाई अपॉन 3, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7 इंटू 10 टू की पावर -6 वाट। तो ये हो गया हमारा पावर एट पॉइंट एफ, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है।